Hello students, welcome at Exam Zone 24/7. Today we will be studying the part 2 of CGTMSC. आज हम CGTMSC के part 2 का स्टडी करेंगे. CGTMSC not only for lateral entry exams but it is also useful for your promotion exams. And अगर आप promotion exams देने वाले हैं या किसी भी बैंक के, whether it is RRBs or others, it is very useful. But if you are preparing for SBI CBO upcoming vacancies or GBO of RRBs scale 2 and 3, public sector banks GBO, especially if you better to get names, it will be BOM, Central Bank, PNB, UBI, Credit Officer and others. This is useful for these exams also. Now what we will do, first हम जो पहले लेक्चर 1 में हमने पढ़ा हुआ है, तो लेक्चर 1 का ब्रीफ रिव्यू लेंगे. ओके, उसके बाद we will continue lecture 2. So then let's begin our session and hope you will find it best useful for you. What do you mean by CGTMSC? CGTMSC is a guarantee fund. Guarantee fund, especially to be precise, you can say it is the guarantee scheme, or you can say scheme. Who manages this? Who manages this CGTMSC? CGTMSC को कौन मैनेज करता है? ओके, if you know, you may comment before going through. It is managed by Government of India and SIDBI, Small Industries Development Bank of India, and hope you know the full form of CGTMSC. Sometimes it is asked that what does M means in CGTMSC? CGTMSC में M का मतलब क्या है? तो this you can say Credit Guarantee Fund Trust. Guarantee Fund एक साथ ही है. Fund Trust for micro and small enterprises. Okay, now this, what is this? It is registered under Trust Act as a trust. Means what is CGTMSC? अगर CGTMSC as an institution की बात करें, CGTMSC as an institution, अगर एग्जाम में आता है CGTMSC क्या है, तो अगर लिखा है कि कंपनी है या प्रोप्राइटर फर्म of Government of India. Third, you may call it as a trust. Or fourth, none of these. Then you say that this is a trust registered under Trust or Indian Trust Act.
Okay, then what will be? There will be trustees. ट्रस्ट में क्या होते हैं? ट्रस्ट में क्या होते हैं? ट्रस्टीज. जो ट्रस्टीज क्या करते हैं? What is the role of trustees? Trustee manages the property of trust. अभी CGTMSE के पास कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो CGTMSE का जो फंड है ना, प्रॉपर्टी मीन्स एक्चुअली द फंड, तो जो उसके पास फंड है उसको मैनेज करेंगे. हु विल मैनेज? इट इज द ट्रस्टी. ओके, अब हम आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि this is the just an introduction, and we have already studied much in this regard, and further we will be going through the next. Okay, now we will be studying what does actually trust do in this case. Okay, what does trust do actually in this case? In this case, in case of CGTMSE, the trust manages the fund and provides guarantee to eligible micro and small enterprises MSEs. ओके, ट्रस्ट क्या करता है? ट्रस्ट प्रोवाइड्स गारंटी टू इलिजिबल सबको नहीं, जो इलिजिबल हैं उनको ही ये ट्रस्ट गारंटी प्रोवाइड करता है. ओके, एंड द मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म, इट डज नॉट प्रोवाइड्स गारंटी डायरेक्टली. मीन्स अगर कोई कंपनी है, कंपनी मीन्स माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज है, तो वो डायरेक्ट CGTMSE के पास जाकर के गारंटी नहीं ले सकती है. ओके, व्हाई? बिकॉज गारंटी इज गिवन फॉर द डिफॉल्ट of loan payment obligations, not for funds. ओके, तो लोन्स इसको मिलेगा किसी भी कंपनी को बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. ओके, किसी भी कंपनी को जो लोन मिलता है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है. तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देंगे, और लोन जो अगर लोन देने के बाद गारंटी लेंगे, इफ इट इज NPA, इफ इट इज कवर्ड बाय CGTMSE, तो इसको मिलेगा गारंटी. Guarantee is a protection against the fund given as a loan to micro and small enterprises. अगर इस माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को कोई आपने लोन दिया है तो उसकी जो गारंटी होती है वो. अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कीम्स, व्हाट आर द टाइप्स अंडर विच गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय CGTMSE. तो CGTMSE की जो गारंटी है, CGTMSE, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी कैटेगरीज
categories. There are CGS1 scheme, CGS1, CGS2 and CG credit guarantee. CGS means credit guarantee scheme 3. ये है, this is for banks, especially scheduled commercial banks. This is for NBFCs and this is for others. Okay, ठीक। तो आपके एग्जाम के लिए if we see that if you look at your exam, then CGS1 is important for you. CGS1, अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं फॉरेन, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कभी पूछा भी नहीं गया है NBFCs वाला, और ये भी हाँ PM स्वनिधि इनके थ्रू अगर गारंटी, बट फॉर योर नॉलेज अगर नहीं पूछा गया तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता है, पूछा तो जा ही सकता है, बट मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स अगर हम देखें तो केवल CGS1 ही पूछा गया है, जो कि बैंक जो लोन देते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनकी जो गारंटी होती है वो CGTMSE के थ्रू CGS1 स्कीम में आती है। अभी ये गारंटी बढ़ा करके 10 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या प्रोसीजर है एंड प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आते हैं CGS1। CGS1 अंडर CGTMSE। तो CGS1 ओके, CGS1 अंडर CGTMSE हम करते हैं। CGS1 CGTMSE में ये क्या है, अर्लियर इट वाज नोन एट CGFSI। देखो CGTMSE के CGS1 आने के पहले CGFSI था, इसका नाम था क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस। ओके, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए था, अभी इसको रीनेम कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद CGTMSE एज ए ट्रस्ट आया, तो इसको आप जान सकते हो अर्लियर क्या कहा जाता था, CGFSI। CGS1 क्या है, CGS1 मीन्स लोन्स which are given to micro and small enterprises by scheduled commercial banks। ओके, ठीक है। लो आर गारंटीड बाय CGTMSE, ओके, अंडर CGS1। मीन्स CGTMSE जो होता है, ठीक है। देखो इसका एक आप डायग्राम भी देख सकते हो, कैसे कि थोड़ा कलरफुल रहेगा तो समझ में आएगा अच्छे से। तो हम देख लेते हैं ये है क्या, ठीक। ये है CGTMSE, ओके। ये CGTMSE में 3 स्कीम है, क्या
CGS1, CGS2 एंड CGS3। ओके, ये क्या है? अगर बैंक किसी को लोन दिया है, बैंक्स मतलब SCBs, तो वो कवर होगा CGS1 में। अगर NBFCs ने लोन दिया है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, ठीक है, अदर्स ने अगर किसी ने फैसिलिटी एक्सटेंड की है तो वो CGS3 में कवर होगा। हमें किस पे फोकस करना है? वी नीड टू फोकस ओनली ऑन CGS1। ओके, क्यों? क्योंकि आपको बैंक का एग्जाम भी देना है और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन दिए हुए हैं वो CGS1 में कवर होगा। ओके, नाउ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, द स्कीम केम इनटू फोर्स इन अगस्त 2000। ओके, स्कीम कब आया ये? ठीक है, स्कीम ये हुआ अगस्त 2000। ओके, ये स्कीम अगस्त 2000 में आई थी तब, एंड अर्लियर नेम वाज CGFSI, जैसा कि हम अब डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अंडर CGFSI। ओके, नाउ कौन कौन से बैंक एलिजिबल हैं? जो बैंक्स डोमेस्टिक, फॉरेन, NBFCs, ओके, UCBs, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, ये देखो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और बाकी, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स एंड NBFCs, UCBs, अदर्स, इनके लिए डिफरेंस क्या है? ये पहले इनको एग्रीमेंट करना पड़ता है। किसके लिए? गारंटी लेने के लिए, फॉर गारंटी कवर। गारंटी कवर करने के लिए इनको किससे? CGTMSE से। ओके, इनको CGTMSE से ये लोग गारंटी एग्रीमेंट करते हैं। वो भी क्राइटेरिया है कि भाई CRAR इनका कितना होना चाहिए, रेगुलेटरी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, इसके थ्रू इनका होता है। ठीक है, जबकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए ऐसा कोई एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, उनको जस्ट केवल प्रीमियम पेमेंट करना होता है। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट करना होता है ऑफ ऑल एलिजिबल अकाउंट्स। ऑल एलिजिबल अकाउंट्स का मतलब है कि ऐसे सभी अकाउंट जिसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है गारंटी लेना चाहते हैं। ठीक, अच्छा, अगर कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अगर कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, अगर वो CGTMSE का कवर चाहती है
उसको पहला तो एग्रीमेंट करना होगा CGTMSE से, एग्रीमेंट विथ CGTMSE। अच्छा, दूसरा क्या करना होगा? दूसरा इसको ये करना होगा, एलिजिबिलिटी क्या है कि मस्ट बी इन ऑपरेशन लास्ट 36 मंथ्स, कम से कम 3 इयर्स, 36 मतलब 3 इयर्स, 3 इयर्स पुरानी होनी चाहिए, मतलब कम से कम 3 साल से वो काम, मतलब अगर आज मान लो आप 25 चल रहा है, तो अगर किसी NBFCs को कवर लेना है CGTMSE, तो इसे कम से कम 22 मीन्स -3, ये इतने दिन से जो है ऑपरेशन में होना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि भाई क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे क्या है, सिक्योरिटी और गारंटी आप इसकी कब ले सकते हो, ठीक है। व्हेन कैन यू टेक द गारंटी? व्हेन कैन यू टेक द गारंटी? ओके, चलो गारंटी आप कब ले सकते हो ये देखना है, ठीक। गारंटी आप तब ले सकते हो जब पहला आपने कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली हो, दूसरा थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ली हो, थर्ड पार्टी गारंटी का मतलब क्या है कि जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर की गारंटी आपको लेनी है, ठीक है। पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स की इम्प्लाइड गारंटी रहती है और आपको लेनी ही है, वो आप साइन जब डॉक्यूमेंट्स कराते हो, ठीक है, तब उस पे अगर किसी HUF ने लोन लिया है तो HUF के को पार्टनर मतलब जो मेंबर्स हैं उस फैमिली के एंड कर्ता, इनकी गारंटी होती है। तो ये थर्ड पार्टी गारंटी नहीं, ये उसकी खुद की गारंटी है। उसके अलावा अगर कोई आप गारंटी लेते हो, मतलब मान लो किसी रिलेटिव से या उसके कोई फिक्स डिपॉजिट अलग से रखवा रहे हो, ठीक है, फंड या कोई प्रॉपर्टी रखवा रहे हो, तो वो चीज जो है वो तब कवर्ड नहीं है, देन यू कैन नॉट टेक। ओके, थर्ड पार्टी गारंटी नहीं होनी चाहिए। फर्दर चलो, अगर वो आपको देना ही चाहता है गारंटी, मतलब आप चाहते हो उसको लोन एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आप कुछ अमाउंट के लिए पार्ट अमाउंट आप CGTMSE को कर लो, और जो पार्ट अमाउंट और बचा हुआ है वो क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट अमाउंट क्या करोगे, वो कर लो आप सिक्योरिटी से, ये कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, ये पूछा गया था क्वेश्चन, अगर आप CGTMSE गारंटी ले रहे हैं तो उसमें प्राइमरी सिक्योरिटी ले सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया था क्रेडिट ऑफिसर में, ठीक है। प्राइमरी सिक्योरिटी, भाई प्राइमरी सिक्योरिटी किसी भी लोन में रहती ही है, यस। अगर आप CGTMSE गारंटी ले रहे हैं
तो प्राइमरी सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। मीन्स प्राइमरी सिक्योरिटी होने का मतलब है क्रिएशन ऑफ असेट out of funds taken from बैंक। ओके, अब आते हैं, ये तो हो गया कि हम कौन कौन से अमाउंट पे सिक्योरिटी ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फर्दर देखो, अब करते हैं, आते हैं कि भाई कितने अमाउंट तक की गारंटी अवेलेबल है। गारंटी कवर, ओके, गारंटी कवर। गारंटी कवर देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFBs एंड अदर्स NBFCs, इनके लिए मैक्सिमम है 2 करोड़। इनके लिए गाइडलाइन में नो चेंज है, तो ये याद रख लेना। कई बार ये पूछा जा सकता है कि भाई बढ़ करके 10 करोड़ हो गई है, RRBs कैन टेक गारंटीज अप टू दिस अमाउंट। नो, ये केवल कमर्शियल बैंक्स के लिए है। ओके, there may be scheduled banks a number up, but it is for scheduled commercial banks. Now, extent of guarantee coverage. Extent of guarantee coverage. इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहला एक चीज याद रख लो, एडिशनल 5% कवरेज। मीन्स एडिशनल 5%, एडिशनल 5% इन ICCDs, identified credit deficient districts, ICDDs, identified credit deficient districts, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो कम है। लेस देन बेंचमार्क, then 5% additional cover will be available for MSEs if available under eligible. Okay, now कैसे अकाउंट है। पहला है स्पेशल टाइप ऑफ MSEs, स्पेशल टाइप, उसमें है स्पेशल टाइप में है A, B एंड C। A है वुमेन, एंड अग्निवीर। ओके, इसको कितना है 90% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट। मतलब अगर 100 रुपए का लोन NPA होता है तो अगर वो वुमेन या अग्निवीर है तो उसमें इसका 90% मीन्स सीधे 90 मिल जाएगा।
90 रुपीज़ ऐसे गारंटी मिल जाएगी। अच्छा 90 रुपीज़ ऐसा नहीं है कि 100 आउटस्टैंडिंग के बेस पे ना, अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट का 90 हो सकता है। जब डिफ़ॉल्ट हुआ तब 80 रुपीज़ हुई हो, तो अगर डिफ़ॉल्ट के टाइम वो अगर 80 रुपीज़ है, ठीक, और इसका 90% 72 होगा, ओके, तो 72 ही मिलेगा। अच्छा कैटेगरी बी क्या है? वो है SC ST PWD एंड जीरो एमिशन, ओके, ZED सर्टिफाइड MSEs। तो बी कैटेगरी है SC ST PWD एंड ZED सर्टिफाइड। इनके लिए है only one classification, direct for whole amount up to 10 crore. It is 85% of amount in default. Means अगर एक किसी SC ST एंटरप्रेन्योर को 100 lakhs का हमने लोन दिया, तो वो डिफॉल्ट होता है अगर 85% ऑफ दिस, मीन्स 85 रुपीज इसको डिफॉल्ट होने पे मिला है। यहाँ 100 लाख लोन देने से अच्छा है कि जब डिफॉल्ट हुआ तब उसकी आउटस्टैंडिंग इतनी थी, ये बोलना ठीक है। चलो नेक्स्ट कैटेगरी है MSE इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट या जम्मू, मतलब एक तरह से हिली एरियाज, ओके। इसमें है दो कैटेगरी, एक है 0 to 50 lakhs एंड सेकंड है 50 lakhs to 10 करोड़। देखो ये 10 करोड़ अभी नहीं, ये बजट स्पीच में ही हो गया था कि इसको बढ़ा के 10 करोड़ करेंगे। CGTMSE ने नोटिफिकेशन अब निकाला है क्योंकि अप्रैल से लागू होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि इसमें बहुत चेंजेस हुए और हमें नहीं पता थे, ये पहले बजट स्पीच में ही बता दिया गया था कि भाई ऐसा ये लोग करेंगे, इनहेंस करेंगे, ठीक है। तो 0 to 50 lakhs है अगर, और ये नॉर्थ ईस्ट या हिली एरियाज में है, तो 80% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट मिलेगा। 80% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट, ओके, मतलब अगर 100 का अमाउंट डिफॉल्ट होता है तो 80 रुपीज आपको मिल जाएगा। 50 lakhs to this करोड़ के लिए सीधे 75% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट है, और अगर 100 का है तो 75% मिलेगा, मतलब 75 आपको मिल जाएगा, ओके। नाउ सेकेंड, नॉन स्पेशल केसेस। वो तो फर्स्ट, नॉन स्पेशल क्या है? ओके, इसमें जो कैटेगरी है वो दो तरह से जाती है। पहला, अगर अप टू 5 lakhs है, ओके, if it is up to 5 lakhs, if it is up to 5 lakhs, there will be 85% of amount in default of MSEs। नॉन स्पेशल मतलब ऐसी कोई भी MSE जो ऊपर जो बताया गया कैटेगरी उसमें से किसी में नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, if it is a more than 5 lakhs, then the clearly only one guideline that already discussed above, 75% of amount in default will be given by this, means अगर ये 100 है तो इसका 75% मीन्स 75 मिलेगा, ओके। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं।
एक एमएससी जब डिफॉल्ट किया उसका 100 लाख का आउटस्टैंडिंग था। ओके, 100 लाख का आउटस्टैंडिंग था, 100 लाख का आउटस्टैंडिंग था। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम नॉन स्पेशल केस मानेंगे और इसमें पता है कि 75% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट मिलने वाला है। बैंक ने सीजीटीएमएससी का फीस भी पेमेंट किया था, तो इसको 75% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट, 75% ऑफ 100 मतलब इसको 75 रुपीज या 75 लाख मिल गए। अच्छा बताओ, ये 100 लाख थे और 75 लाख ही मिले, तो बाकी 25 लाख कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये क्या है, ये बैंक को कवर इतना ही है तो बैंक को इतना ही मिलेगा। इट इज अप टू बैंक्स रिकवरी। बैंक अब इसको 25 लाख को रिकवरी करे और ये राइट ऑफ करे, ठीक है। इसमें सीजीटीएमएससी कुछ नहीं देने वाला है और सीजीटीएमएससी को आपको एक रिपोर्ट भी भेजनी है कि ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन डन। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, ये आप खोजिएगा और बताइएगा। अगर आपके पास पीडीएफ एग्जाम जोन की होगी तो एग्जाम जोन के पीडीएफ में ये मटेरियल अवेलेबल है। क्वेश्चन है, अप टू विच अमाउंट लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ recovery has been waived off by CGTMSC, ठीक है। तो आपको बताना है। वेरी बिगिनिंग का आंसर आप सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन रिसेंट जो हुआ है वो आपको बताना है। ओके। दूसरा, आइडेंटिफाइड क्रेडिट डिफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स, वो क्या होते हैं, ठीक है। इफ पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इफ पर कैपिटा PSL is less than rupees 9,000, then it is an identified credit deficient district. How many districts are there as of now? How many districts are there as of now? These are 196 districts in total. Okay? तो ये सेशन यहाँ तक ही है। बाकी MCQ ये ग्रुप में, ठीक है, और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी आल्सो। अगर आपको पेड बैचेज ज्वाइन करने हैं, यू मे टेक्स्ट ओवर, ओके, थैंक्स। अगर कुछ भी, इफ यू हैव सम क्वेरीज यू मे टेक्स्ट, ओके, एंड होप you will find it well suited for your exams.